جی السلام علیکم حضرات، آپ تمام لوگ اس بات سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ آج کی نشست اس لیے بلائی گئی ہے کہ نہ صرف بنگال کے بلکہ ہندوستان کی ایک معتبر شخصیت ادیب و شاعر حضرت قیصر شرین ہمارے درمیان نہیں رہے. ان کی یاد میں مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے. چونکہ ان کا تعلق اردو اکیڈمی سے بہت پرانا رہا ہے، وائس چیئرمین بھی ایک زمانے میں رہے. اس کے علاوہ انہوں نے اردو شاعری یا اردو نثر پر جس طرح کے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اسے یقیناً ہم فراموش نہیں کر سکتے. مجھے یاد آتا ہے کہ جہاں تک حیات و موت کا تعلق ہے تو ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک شعر کہا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا. ظاہر ہے کہ ان اجزاء کا پریشان ہونا ہم لوگ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ قیصر شرین صاحب کو یاد کریں. اور جہاں تک ادیب و شاعر کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں بلکہ یہاں تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں تمام کے تمام اہل بصیرت ہیں، اہل نظر ہیں، اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ شاعر و ادیب کی موت کبھی نہیں ہوا کرتی. وہ ہماری کتابوں میں، ہمارے سانسوں میں، ہمارے گفتگو میں، ہمارے احوال میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے. لہذا بلا تاخیر میں اکیڈمی یہ چاہتی ہے کہ آج کی اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو. میں امین عامر صاحب سے 10 وقت گزارش کر رہا ہوں کہ اب تلاوت قرآن پاک سے مجلس کا آغاز کریں. جناب امین عامر صاحب. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح على النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور جان رکھو تم میں سے ہر شخص کو کل قیامت کے دن اس کے کام کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. دراصل کل روز آخرت میں وہی شخص کامیاب ہے جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. شکریہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لحضرت قیصر شرین. اللهم اغفر لحضرت قیصر شرین. اللهم اغفر لحضرت قیصر شرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ امیانی صاحب، آپ نے تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ قیصر شیخ صاحب کے جو ہے مغفرت بھی کی۔ یقیناً جو ہے حضرات قیصر شیخ صاحب کا ادبی سفر بہت طویل ہے۔ CMO اسکول سے لے کر کلکتہ یونیورسٹی، مولانا آزاد کالج اور عالیہ یونیورسٹی تک انہوں نے جس طرح وہاں کے بچوں کی ذہن سازی کی ہے، یقیناً ہم تمام لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ جہاں تک کہ 1033 کا تعلق ہے، یہاں کچھ لوگ ایسے بھی تشریف فرما ہے جنہوں نے قیصر شیخ صاحب کے سامنے بیٹھ کے ضامن طلب مستحق کیا اور ادب کے نکات سیکھے، شاعری کے رموز سے آشنائی حاصل کی، اس لیے کہ قیصر شیخ صاحب نے ایک زمانہ دیکھا اور بالخصوص شاعری کی دنیا میں انہوں نے کئی خطاوت شاگردی پیدا کی ہے۔ میں نے CMO اسکول کلکتہ یونیورسٹی، مولانا آزاد کالج اور عالیہ یونیورسٹی کا ذکر اس لیے کیا کہ 2-3 برسوں تک کے کلکتہ یونیورسٹی میں بھی 1033 کے فائدے نام دیتے رہے۔ جب مولانا آزاد کالج میں شعبہ اردو 2009 میں قائم ہوا تو شعبہ اردو نے ان کے خدمات حاصل کی، اور وہاں کے نصاب کی تیاری ہو یا بورڈ آف اسٹڈیز کا معاملہ ہو، دونوں جگہوں پر، یا کلاس روم کا معاملہ ہو، تمام جگہوں پر قیصر شیخ صاحب بہت ہی نیک نیتی خلوص کے ساتھ، نہایت ہی تنبیہی کے ساتھ ہمارے بچوں کی ذہن سازی کرتے رہے۔ عالیہ یونیورسٹی کا جب قیام ہونے میں آئے تو پہلے دن سے ہی نصاب کی تیاری میں قیصر شیخ صاحب ہمارے ساتھ رہے۔ یہاں نعیم علی صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم سبوں کی موجودگی میں قیصر شیخ صاحب نے جس طرح نصاب کی تیاری ہماری مدد کی، ہم اسے فراموش ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت طویل کام رہا ہے وہاں، 2.5 سال تک قیصر شیخ صاحب عالیہ یونیورسٹی کے بچوں کو سازی کرتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی یا مختصر سی نشست میں ان کے تمام کاموں کا یا ان کے کارناموں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسا موقع ہمارے سامنے آیا جو ہمارے درمیان نہیں رہے، بیٹھ کر ان کے متعلق کچھ واقعے کو یاد کریں گے، کچھ حادثے کو یاد کریں گے، یا کوئی ایسا بھی واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہو جو یقیناً جو ہے ہمارے لوح حافظہ پہ منقوش ہے، ہم دھیرے دھیرے اسے سننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے جو ہے ان کے بہت ہی قریب رہنے والے نصر اللہ نصر صاحب ہیں۔ میں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کے اظہار کریں۔ جناب نصر اللہ نصر۔ السلام علیکم حضرات، حضرت سے تعلق میرا استاد اور شاگردی کا تھا، ساتھ ہی ساتھ ان کی ایسوسیشن ہاؤڑا رائٹر ایسوسیشن کا میں بہت دنوں تک ممبر بھی رہا اور بحیثیت سیکریٹری بھی کافی دنوں تک ان کا ساتھ رہا۔ ان کی زندگی کے بے شمار واقعات سے میں واقف ہوں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ وہ اتنے مخلص انسان تھے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ دل میں کوئی کینہ وغیرہ نہیں، ہم لوگ غصہ ہو جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے، لیکن پھر جب ملتے تھے تو وہ اسی خلوص کے ساتھ ملا۔ میں نے ان کے واقعات کو اور مختصر کرتے ہوئے میں ذکر کروں گا۔ ایک بار دلی سے کسی شاگرد نے اصلاح کی غرض سے جو وہ اپنے کلام ان کو بھیجا کرتے تھے، وہ 1100 روپے کا چیک بھیجا۔ قیصر شیخ صاحب نے کافی دنوں تک بلکہ ہفتوں سوچا اور کہا نصر اللہ میں یہ چیک نہیں لوں گا۔ انہوں نے وہ چیک واپس کر دیا رجسٹر کے ساتھ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ چھپرا کے ایک شاعر کے انہوں نے اپنا مسودہ دیا تھا اور انہوں نے نظر ثانی کرنے کے بعد وہ 5000 روپے سر کو پیش کیے، سر نے نہیں دی، سر نے وہ پیسے نہیں دی۔ بہت سارے واقعات ایسے۔ بہرحال میں ایک چھوٹی سی نظم ان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ اور چراغ علم و فن، علم کی روشنی ادب کا جہاں،
नैयरे फन हुनर की काह कशां, पेशवाए सुखन सुखन की वो जहाँ, और होंगे मगर हैं उनसा कहाँ। वो जमानत थे कामयाबी की, रश्क करती थी उन पे बज़्म जहाँ, महर उल्फत का वो चमन ताज़ा, एक यकीन थे कहाँ वो सिर्फ गुमा, फेल व अक़वाल में वो शादिक थे, खौफ खाते थे वो किसी से कहाँ। तजर्बे उनके तल्ख़ व शीरी थे, उनकी तख्लीक में है दर्द नेहा, थे घना पेड़ छाँव जिसकी घनी, सर पे उनके थी धूप भी रक्षा, सातों का वही समुंदर थे, सांस की धार की सदाए फवा, एक अरसा पहाड़ काटे थे, तब बने थे वो एक दुर्रे जहाँ, चीखती है ज़मीन भी अब तो, चीखती है ज़मीन भी अब तो, उनकी रुसत में सब है अश्क फिजा, जब करे बात मुँह से फूल झरे, चाशनी उनकी गुफ्तगू में निहा, उनका गुलशन खिला रसीदा रहा, दूर जिसे हुई न काली खिजा, गम के दरिया का ना खुदा थे वो, दुख का उठता था उनके दिल में धुआं, उनकी चिट्ठी अदब की खिदमत हो, और फूले फले हमारी ज़बान, उनकी आमद से बज़्म में रौनक, महफिलों का वही थे नूरी समा। वो गनीमत थे अहले उर्दू में, उनसे बज़्म सुखन था नूर फिशा, उनकी तौसीफ हो किसी से क्या, वो शमीम सुखन थे बुए रवां, उनके कितने थे ख्वाब क्या लिखूं, आरज़ू उनकी नस्र क्या हो बयां, उन पर रहमत खुदा की हर पल हो, पुरज़या कब्र रहे अत्रफशा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नसर साहब ने यहाँ गुफ्तगू की, वहीं जो है एक छोटी सी नज़र पेश करके उन्हें खास फैदत पेश करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान मुश्ताक अंजुम साहब हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा, इन्होंने कहा कि मुझे जब छोड़ दिया जाए तो वो ठीक नहीं है, लिहाजा मैं अपने साथ मुश्ताक अंजुम साहब। कैसर खुद अपनी ज़ात में क्या क्या न था मगर, कैसर खुद अपनी ज़ात में क्या क्या न था मगर, समझा गया न कुछ नहीं, वो एक फर्द के सिवा। जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ शुरकाए तवज्जो, सबसे पहले मुर्गिबंगा नूरे करीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उस्ताद मोहतरम के सिलसिले में ताज़ीज़ जलसा मुनक़िद किया गया, और ममनून इसलिए भी हूँ कि ख़ाक साहब को इसमें शामिल होने का मौका दिया। मैं उनके सिलसिले में क्या अर्ज़ करूँ। जब कोई कहता है तो मुझे लगता है कि मेरे चारों तरफ बेशुमार यादें हाथ बांधे नहीं खड़ी हैं, किसका जिक्र करूँ। उनके बारे में बहुत सी बातें हैं, उनके शब रोज़ पर हमें नजर डालनी होगी तो बातें आया होंगी। तो वो क्या थे, किसी ने कभी कुछ मांग लिया तो जेब में न रहने के बावजूद किसी दूसरे से उधार लेकर जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर देते थे। कभी सुन लिया कि कोई अजीज बीमार है तो आयात में बहुत जल्दी करते थे, इतनी जल्द कि आयात के लिए पहुंच जाए। बहुत सी उनकी यादें, बहुत सी बातें हैं, क्या कहूँ। अच्छा, बातों बातों में वो बहुत सी बातें सिखा देते थे, बहुत सी चीज़ बिल्कुल सामने की चीज़। एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आ रहा है कि हमारे यहाँ एक चाय की दुकान हुआ करती थी बहुत पहले, जहाँ
کی چائے مشہور تھی اور اس کا نام تھا ملائی مار کے چائے. اس میں ملائی ڈال دیتے تھے, ملائی پیارتی رہتی تھی اوپر. تو حضرت کو وہ چائے بہت پسند تھی اس زمانے میں, تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ اس میں ڈالتے اور چائے کے لیے آرڈر کیا. میں چائے لے کر آیا اور ایک ٹرے میں چائے میں کئی پیالیاں تھیں اور ہر پیالے کے دائرے پہ ملائی تیر رہی تھی. لیکن چائے کی ٹرے رکھتے وقت تھوڑی سی جنبش ہو گئی ہاتھ میں اور ایک پیالی کی ملائی جو ہے وہ سلپ کر کے ٹرے میں گر گئی. اچھا جو باقی سب ساتھی تھے انہوں نے تو اپنی پیالیاں اٹھا لی. 2 پیالیاں بچ گئی, ایک حضرت کے لیے اور دوسری پیالی ان کے بہت ہی عقیدت مند ساتھی ابوالقاسم انصاری. ابوالقاسم انصاری بھی بہت پسند سے ملائی والی چائے پیتے تھے. اب بیچارے سوچ رہے کہ سر کے سامنے میں کیسے اٹھاؤں, اور حضرت بھی مسکرا رہے کہ 2 پیالی میں سے ایک میں ملائی ہے اور دونوں خواہشمند, دونوں شوقی. تو حضرت نے ہاتھ بڑھا کر ملائی والی چائے اٹھائی. اب تو ابوالقاسم انصاری صاحب اندر ہی اندر تیر ملا کے جائیں گے کہ کیا کریں, لیکن فوراً حضرت نے کہا یہ چائے میں نے آپ کو پیش کرنے کے لیے اٹھائی ہے, یہ آپ پیجیے, اور بغیر ملائی والی چائے میں بھی. ابوالقاسم صاحب نے کہا کہ نہیں, آپ کو چائے بہت پسند ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے تو میں تمہیں دے رہا ہوں, اور کہا بھی یہی گیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. سامنے کی بات ہنسی ہنسی کھیل کھیل میں انہوں نے کس طرح سے ایک معتبر حدیث کی یاد دلا دی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اگر اس پر دنیا قائم ہو جائے تو دنیا جنت بن جائے. اس طرح سے ان کی بہت سی باتیں ہیں, موقع نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں. میں یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ پرانے لوگ بھی ہیں اور نئے لوگ بھی ہیں, تو مجھے ان کی ایک بہت پرانی نظم یاد آ گئی. میں کوشش کرتا ہوں چھوٹی سی نظم کا عنوان ہے اسب تازی شدہ مجروح. چھوٹی سی نظم فرماتے ہیں, سلیکشنی کرسیوں کے آگے, سلیکشنی کرسیوں کے آگے ضرورتیں گر گڑا رہی ہیں, سفارشیں مسکرا رہی ہیں. سلیکشنی کرسیوں کے آگے ضرورتیں گر گڑا رہی ہیں اور سفارشیں مسکرا رہی ہیں. سلیکشنی کرسیوں سے جتنے سوال نظریں اٹھا رہے ہیں, سفارشوں کا اشارہ پا کر وہ اپنا لہجہ سجا رہے ہیں, کمال اپنا دکھا رہے ہیں. سلیکشنی کرسیوں سے جتنے سوال نظریں اٹھا رہے ہیں, سفارشوں کا اشارہ پا کر وہ اپنا لہجہ سجا رہے ہیں, کمال اپنا دکھا رہے ہیں. بڑا نہ پاؤ بڑا نہ سر اور یہ سہارا, ضرورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ان پہ کوئی کرم نہ ہوگا. ضرورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ان پہ کوئی کرم نہ ہوگا. کہ بلند قامت کہ اونچی اونچی کرسیوں کے آگے ذہانتوں اور محنتوں کی جو قدر بھی ہے تو بس یہی ہے
कि उनके माथे पे एक सितारा सिफारिशों ने बना दिया हो तो उनकी कीमत बहुत बड़ी है, मगर किस्मत बहुत बुरी है। सिलेक्शन की कुर्सियों का हर फैसला हमेशा इसी तरह से हुआ किया है, हुआ करेगा। बरह न पाओ बरह न सर और बेसहारा, जरूरत है सर झुकाए कमरे से जा रही है, सिफारिशें मुँह चिढ़ा रही हैं, सिफारिशें मुँह चिढ़ा रही हैं। ये उनकी एक छोटी सी गल मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा पेश कर दूँ, और उनके बारे में अब मैं क्या कहूँ उसके साथ एक बार मेरी अकेडमी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और यही कहूँगा कि दिल को, जिगर को, जिस्म को बेजान कर दिया एक शख्स, सारे शहर को वीरान कर दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सही कहा। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि यकीनन जो है हमारे सामने आना चाहते हैं, लेकिन वक्त की तंगी भी है। और जिस तरह से आपने जिस महंगाई का जिक्र किया, तो इस तरह के वाक़यात तो बहुत कम देखने को मिला करते हैं कि भाई मुझे महंगाई वाली चाय पसंद है, मैं आपको पेश कर रहा हूँ। बहरहाल बहुत ही अच्छा वाक़या, और उस हदीस की रोशनी में भी ये बात सबूत को पहुँचती है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि फिर जो दिनों पर दूसरों को भी पेश किया करो। तो हमारे दरमियान खैसर शरीफ साहब के बराबर निस्बती सईद हसन साहब तशरीफ रखते हैं। मैं जो मतलब इस वक्त खैसर शरीफ साहब के बारे में कुछ ख्याल पेश करें। हम सबसे पहले एकेडमी के तमाम अहदेदारान उनके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस नाचीज़ को अपनी महफिल में दावत दी। कल दबीर साहब ने फ़ोन किया कि भाई तुम्हें आना, मैं इंशाअल्लाह हाजिर हूँगा। मज़ीद ये कि उनके साहिबजादे हैं इरफान हयात साहब, उनको भी आपने दावत दी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कुछ मादरत की कुछ परेशानी रही, उन्होंने कहा तुम जाके शिरकत कर लेना, उनकी परेशानी है तो मैं उनकी तरफ से भी हाजिर हूँ। मैं सर के बारे में क्या अर्ज़ करूँ, वो एक सूरज थे जिनकी रोशनी पूरी दुनिया पे फैली, पूरी दुनिया से मुराद हम तमाम जैसे बच्चों का, जिनसे हम लोग फैज़ उठा। कभी उन्होंने कोई तफरीक नहीं की, किसी मामले में कभी भी तफरीक नहीं की। कभी कभी मुखालफतें होती, उनके कानों तक ये बात चली जाती, तो उस पर वो कभी तवज्जो ही नहीं देते। लोग कहते सर आपको फलां साहब ने ये क्या, फलां साहब ने, बोले मियाँ दुनिया का काम है करने का, मेरा काम जो है वो मुझे काम करना, मेरा काम पैसे पहुँचाने का। दूसरी बात ये कि कभी मुतासिबाना नजरिया नहीं रहा उनका किसी भी मामले में, खा वो मजहब के एतबार से हो, मसलक के एतबार से हो, सबों को वो अजीज रखते थे और सब उनको चाहते भी थे। अपने एक शेर में फरमाते हैं कि मेरा मजहब इश्क का मजहब जिसमें कोई तफरीक नहीं, मेरे हल्के में आते हैं तुलसी भी और जामी भी। तो ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत उन्होंने 2 अंजुमनें कायम की और दोनों अंजुमनों का ताल्लुक 50 साल से कुछ ज़्यादा है। एक वो जो स्कूल कायम किया था अरबी सोसाइटी अंगस, अरबी सोसाइटी अंगस इसका नाम भी आपने ही रखा था, उसके बाद वो असासी सेक्रेटरी थे वो
हायर सेकेंडरी स्कूल है और बड़े पैमाने पर चल रहा है, जहाँ तक सर की जाए पैदाइश नहीं वो स्कूल भी है। और दूसरा, हम जैसे लोगों के लिए एक अदबी सोसाइटी कायम हुई, एक अदबी अंजुमन कायम की, जिसे हम राइटर्स एसोसिएशन हावड़ा के नाम से जानते हैं, जिसका 55वां यौम तासीस अब हम लोग करने जाएंगे इंशाअल्लाह। आज जो कुछ भी हम लोग हैं, हम जैसे मामूली संग्रह से, वो उन्हीं के दम से हैं कि आज इस लायक किया कि मैं आपके सामने लटकुशाई कर सकूं, अपनी बात रख सकूं, बल्कि मैं अर्ज करता चलूं कि मुझे वो सआदत हासिल है कि स्कूल की सतह से लेकर के यूनिवर्सिटी की सतह तक हमें उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। दूसरी बात जहाँ तक रही रिश्तेदारी की, तो हजरात में अर्ज करता चलूं, रिश्ते जरूर थे हमारे बिरादराना, लेकिन मेरे ताल्लुकात डॉक्टर मुश्ताक नईम साहब हैं, यहाँ हमारे नसरुल्लाह नस्र साहब हैं, जावेद मजीदी साहब हैं, आप तमाम हजरात जानते हैं पितराना ताल्लुक था उनका। मुझे अपने बच्चे की तरह इरफान और मुझे कोई फर्क महसूस नहीं किया। जिस ज़माने में वो हमारे करीब खाने पे उन्होंने इज्जत बढ़ाई, बरसों रहे, जिस ज़माने में वो यूनिवर्सिटी से मतलब थे, मसरूफियत थी 10-12 साल का अर्सा, वो दौर मेरा बहुत अच्छा था। और उस कुटिया को उन्होंने वो रौनक बख्शी कि बड़ी बड़ी शख्सियतें कल मुरंजा फरमाई उसमें। ये बहुत बड़े एहसास की बात है, मैं बहुत खुश नसीब और बदनसीबी इस वजह से मैं हूँ कि मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ 1990 में, तो वालिद उन्हें बहुत चाहते थे। उन्होंने यही कहा, फैसल शमीम साहब ये बच्चा अब आपकी जिम्मेदारी है। हजरात वो 90 का ज़माना और ये 2021 का ज़माना हो गया, इतनी लंबी मुद्दत हमने उनके साथ गुजारी है। मैं अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि मैं दोबारा यतीम हो गया। यतीमी की दाग में 2 बार रह सकता। हमारे सामने हमारे उस्ताद मोहतरम ज़हीर अहमद साहब तशरीफ रखते हैं, वो मेरी बड़ी बड़ी परेशानियों के ज़माने में उन्होंने मेरी दस्तगीर फरमाई, लेकिन एक बाप की तरह जो होनी चाहिए वो मेरे साथ उन्होंने वो किया। आज मैं अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करता हूँ, बहुत तन्हा महसूस करता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उन्हीं का जन्नत नसीब करे, आमीन। और मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी तौफीक बढ़ाई, अपनी महफिल में आपने दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद असद साहब। यकीनन जो है आप फैसल शमीम साहब को अपना उस्ताद भी माना, अपना बुजुर्ग भी माना। यकीनन फैसल शमीम साहब की शक्ल ऐसी ही थी कि अपने शागिर्दों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने रफ़ाक़ के साथ जिस मोहब्बत से पेश आया करते थे, इसकी नज़ीर तो अब धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। अब ऐसे लोग शहर में बहुत कम लोग हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि मौजूद चंद लोग रह गए हैं शहर में जो यकीनन जो जिनको कहा जा सकता है कि उनके सामने बैठ कुछ अदब सीखा जा सकता है, कुछ शायरी के रमूज सीखे जा सकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं। यकीनन जो है फैसल शमीम साहब की कमी महसूस की जाएगी और बहुत देर तक के महसूस की जाएगी। हमारे दरमियान फैसल शमीम साहब के बहुत ही अजीज शागिर्द इस महफिल में मौजूद हैं। मेरे मुराद इरशाद आरज़ू साहब से मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप फैसल शमीम साहब के हवाले से हमारे सामने जनाब इरशाद आरज़ू। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहीम और करीम और बड़ा ही मेहरबान है। अकाबिर अदब साहिब हज़रत फैसल शमीम साहब के ताल्लुक़ से मैं सिर्फ एक शागिर्द कुछ कहता हुआ ऐसा महसूस करता हूँ
کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی زندگی پر روشنی ڈال رہا ہے. میرا ان سے رشتہ تقریباً 30 سالوں کا ہے اور یہ رشتہ اس وقت قائم ہوا تھا جب میں مولانا آزاد کالج میں داخل ہوا اور نصر غزالی نے ایک مجلس میں مجھے غزل پڑھتے ہوئے سنا اور کہا کہ تم شعر بھی کہتے ہو. میں نے کہا جی. تو کہا کہ یہاں کی روایت رہی ہے کہ شاگرد بھی یعنی طالب علم بھی کالج کے طرحی مشاعرے میں شرکت کرتے ہیں. تو تمہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ تم شعر کہو, غزل کہو اور طرحی مشاعرے میں شرکت کرنا. میں نے کہا سر میں کوئی استاد نہیں ہوں اور بغیر اصلاح کے غزل پڑھنا یہ کالج کے لیے بھی اچھا نہیں, میرے لیے بھی اچھا نہیں. مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے اجازت دیتا ہوں, صرف یہی غزل میں دیکھوں گا جو طرحی ہوگی, اس کے بعد میں اصلاح نہیں دوں گا. لہٰذا میری پہلی غزل نصر غزالی صاحب نے دیکھی. اس کے بعد برادر محترم نئی منیس نے مجھے قیصر شمیم کے حضور حاضر کیا, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وہ رشتہ میرے ساتھ 30 سالوں کا رہا. اس درمیان میں نے غزلیں کم دکھائیں, فن سیکھنے کی کوشش کی اور فن اس طرح سیکھنے کی کوشش کی کہ میں غائبانے میں اصلاح نہیں لیتا کہ غزلیں بھیج دی یا غزلیں دے کر چلا آیا اور کہا کہ دیکھ لیجیے. بعد میں گیا, کلیکٹ کر لیا, لے کر چلا آیا. معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے مسئلے بدل دیے گئے, بہت سارے خیالات بدل دیے گئے. میں ایسا پسند نہیں کرتا تھا, تو میں سامنے بیٹھ کر اصلاح دیتا تھا اور کسی لفظ کی تبدیلی پہ گفتگو کرتا تھا, پوچھتا تھا وجہ کیا ہے, اور جو وجہ سامنے آتی تھی پھر اگلی بار جب میں غزل کہنے بیٹھتا تو اس کو نظر میں رکھتا تھا. اس وجہ سے غزلوں کی تعداد ان کے حضور میں بہت کم حاضر ہوئی, لیکن ہاں فن سیکھنے کی کوشش کی. میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے بہت کچھ سیکھا, لیکن جو کچھ بھی سیکھا وہ قیصر شمیم سے ہی سیکھا. اور جو کچھ شہر میں یا شہر کے باہر کچھ پہچان بھی ہے تو ظاہر بات ہے استاد کی دعائیں ہیں, ان کی تربیت ہے جو آج خوشبو کی طرح میرے ارد گرد ہے اور انشاءاللہ زندگی بھر رہے گی. باقی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے شاگردوں کو عزیز رکھتے تھے, اولادوں کی طرح رکھتے تھے. اس میں بس ایک جملہ ہی کافی ہے کہ ہر شاگرد کو یہ گمان گزرتا تھا کہ قیصر شمیم صاحب یعنی استاد محترم سب سے زیادہ اسے ہی عزیز رکھتے ہیں. یہ محبت کی سمجھ لیجیے معراج ہے کہ ہر شاگرد یہ محسوس کرے کہ میں سب سے قریب ہوں اپنے استاد. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور تعزیت کے لیے جانا, عیادت کے لیے جانا یقیناً ان کا یہ تھا, بلکہ کبھی کبھی وہ دل میں یہ خیال کر لیتے تھے کہ فلاں شاگرد نہیں آ رہا ہے, کہیں کچھ ایسے معاملات تو نہیں ہو گئے. مثال کے طور پر نعیم الدین فضا صاحب ایک شاعر ہوا کرتے تھے, بیگوران سے تعلق تھا. وہ 77 فرسٹ لینڈ سے حسین صاحب کے یہاں حاضر ہوتے تھے. قیصر شمیم صاحب اس زمانے میں کلکتہ یونیورسٹی میں بحیثیت استاد اپنی خدمات انجام دے رہے تھے. کسی وجہ سے انہوں نے بیل بجایا 2-3 بار اور وہ دروازہ نہیں کھلا, تو نعیم الدین فضا لوٹ گئے اور تقریباً 1 ہفتے تک پھر حاضری نہیں ہوئی ان کی. قیصر شمیم صاحب کو یہ گمان گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی وجہ سے اسے بار خاطر ہوا ہو, کوئی تکلیف ہوئی ہو یا وہ آ کر لوٹے ہوں. لہٰذا خود چل کر بھی اور کہا کہ فضا کہ ایسا تو نہیں کہ تم جا کر واپس لوٹے کسی وجہ سے, چونکہ 1 ہفتے سے کوئی خبر نہیں ہے, تمہاری حاضری نہیں ہے. فضا صاحب مسکراتے کہتے کہ جی میں حاضر ہوا تھا, دروازہ نہیں کھلا تو میں واپس گیا. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کسی وجہ سے دروازہ نہیں کھل سکتا ہے, ہو سکتا ہے گھر میں کوئی نہ ہو, بیل آف کرنا بھول گیا ہے, کوئی ایک ہی فرد ہو, سو رہے ہو. میں ان کے اہل خانہ کی طرف سے معذرت کرتا ہوں. اور وہ شامل لے کر پھر آئے اور ان سے گفتگو کی. ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے کہ میں رمضانی قصیدے بھی لکھتا ہوں. ایک مرتبہ قصیدہ لے کر حاضر ہوا شیخ کو, میں نے قصیدہ پیش کیا, انہوں نے دکھایا, دیکھ لیا. ایک لفظ کی تبدیلی پر وہ مزید تھے کہ نہیں یہ لفظ بدل دو بہت اچھا ہوگا, استاد کر لیجیے. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگا کہ میرا لفظ بھی کہیں نہ کہیں 2-3 ڈکشنری انہوں نے نکالی, دیکھ لیا اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے تبدیل کر دوں. میں نے قبول کر لیا, واپس لے کر آ کے. اس زمانے میں میں باب العلوم مولالی میں رہتا تھا. کبھی استاد محترم وہاں تشریف نہیں لائے تھے. دوسرے دن صبح 7 بجے وہ حاضر ہوتے ہیں
और दरबार में मुझे कहते हैं कि एक साहब आया है ज़ईफ़ से है, कैसे शमीम नाम बता रहे। मेरा खून खुश्क हो गया कि सर कभी नहीं आए, आज क्यों आए, कौन सी ऐसी बात हुई। दौड़ता हुआ हाजिर हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ कह देते, बैठो, शाम वाला पर्चा दिखाओ जिसमें मैंने इस्लाह दी। और फिर उन्होंने कहा कि रात में 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आई कि तुमने ये सवाल क्यों किया कि मेरा लफ्ज़ भी सही है। लिहाजा मुख्तलिफ डिक्शनरी देखने के बाद फरंग आस्तिया ने मेरा लफ्ज़ मिला और ये सही है बेटा, तुम अपना लफ्ज़ रखो, मैं अपना लफ्ज़ हटा दूँ। आजकल शायद ही कोई उस्ताद ऐसा हो। आजकल तो उस्तादी ये होती है कि अच्छे मिसरे को भी काट कर अपना मिसरा रखा जाता है ताकि मैं उस्ताद। लेकिन मैं एक मजलिस में मैंने ये तकरीर में ये वाक़या बयान किया है, लेकिन आखिरी जुमला बयान करना नहीं मुनासिब समझा था। आज मैं वो बयान करता हूँ कि अक़ीदतन मैंने अपना लफ्ज़ नहीं रखा, कैसर शमीम का ही लफ्ज़ रखा कि वो वहाँ से चल कर आए हैं, तो मुझे अक़ीदतन वो लफ्ज़ कबूल कर लेना चाहिए। और माशाअल्लाह वो लफ्ज़ बहुत सही रहा और वो कसीदा भी उस ज़माने का हिट हुआ था अल्लाह के करम से। तो ये कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिससे पता चलता है कि वो जबरन किसी लफ्ज़ पर मज़िद नहीं होते, वो किसी शागिर्द को अपना मिसरा जबरन नहीं देते कि तुम उसको रख लो, बल्कि ये शागिर्दी पर ही कबूल की बात है कि तुम अगर चाहो तो इसको तब्दील कर लो, इसमें ये ऐप है, ये ऐप सीखने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है। और जो लोग नहीं सीखना चाहते वो हमेशा बाहर रहते हैं, वो मिसरे पर मिसरे मिल सकते हैं, कोई मिला करते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। बहरहाल मैं उस्ताद मोहतरम के लिए तो दुआइया कलमात अदा करता हूँ, तो अल्लाह उनको दर्जात दे। और 2-3 रुबाइयात पेश करता हूँ कि तख्लीक की पहचान जनाबे कैसर, हर सिर्फ के गुलदान जनाबे कैसर, इस्लाह से वो अपनी अता करते थे, हर शेर में जान जनाबे कैसर, तहजीब के अखलाक के पैकर कैसर, उस्तादों में उस्ताद थे बेहतर कैसर, उर्दू के सिपाही किए पैदा हर सू, रुखसत हुए एक फौज बनाकर कैसर। बहुत शुक्रिया शाह हजूर साहब कि आपने अपनी शागिर्दी का हक अदा किया। तो मुझे याद आ रहा था एक वाक़या, आप तमाम लोग इस वाक़े से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रशीद अहमद सज्जद की सदर शुरा की थी। मसूद हुसैन खान साहब दाखिला लेना चाह रहे थे, लेकिन उनका दाखिला वहाँ नहीं हो रहा था। बार बार जा रहे थे तो रशीद अहमद सज्जद ने कहा कि आज भी नाजिल हो गए। तो मसूद हुसैन खान ने कहा सर ये नज़ुल मसूद नहीं है, वरुद मसूद है। रशीद अहमद सज्जद ने कहा कि तुमने इतना अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तुम्हारा दाखिला आज ही होना चाहिए। इरशाद हजूर साहब उसी तरह की बात कर रहे थे कि उन्होंने जब एक लफ्ज़ दिया, लेकिन अक़ीदतन उस लफ्ज़ को जो है उन्होंने अपनी शायरी में, अपनी मिसरे में शामिल करके साबित किया क्योंकि एक सच्चे और पक्के शागिर्द हैं उनके। बहरहाल ये बातें हमारे सामने इस तरह की होती रहेंगी। बहुत सारे वाक़यात हैं जो हम तमाम लोग उससे नवाज हैं। अब चलते हैं नई मनीष साहब की तरफ, जिन्होंने अभी तो इरशाद हजूर साहब 30 वर्षों का वाक़या सुना रहे थे, हमारे सामने पेश कर रहे थे। वही नहीं मनीष साहब है जो लेके इरशाद हजूर साहब को कैद रशीद साहब के यहाँ गए। मैं इनसे मुतमिस हूँ कि आप कुछ वाक़या हमारे सामने पेश करें कैद रशीद साहब के हवाले से। शुक्रिया दरबार साहब। आज की तकरीब के साथ और हाज़िरीन मजलिस, उस्ताद मोहतरम ताशीर साहब के सिलसिले से कुछ कहने के लिए दरबार साहब का हुक्म हुआ। उसमें मसरूफ़ में क्या जलसा है ना, इरशाद हज़ूर ने जो बातें कही और मुश्ताक अंजुम साहब ने जो सर की एक नज़्म पढ़ी, उस नज़्म का पस मंज़र भी कहीं ना कहीं कुछ है और उससे शायद बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि उनके हवाले से जहाँ जहाँ बातें हुई वो सिर्फ सीएमओ हाई स्कूल, आलिया यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद कॉलेज और कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात आई, लेकिन किसी ने भी खजरपुर कॉलेज का जिक्र नहीं किया। जिस ज़माने में मैं मुस्लिम ये सीएमओ हाई स्कूल में तालिब इल्म था, तो अचानक हम लोग को ये खबर मिली कि हम सबों के बहुत चहीते मुशफ़िक़ उस्ताद कैसर शमीम साहब हम लोग को नहीं पढ़ा सकेंगे, उनकी तकर्री खजरपुर कॉलेज में के शोबे उर्दू में हो गई और सर गालिबन लियन पे वहाँ से चले गए।
हम लोग बहुत उदास हुए क्योंकि वो जिस तरीके से पढ़ाते थे, उनका जो मोहब्बत का अंदाज़ था, सिखाने का जो अंदाज़ था, तो यानी 5, 6, 7 के बच्चे भी उनका इंतज़ार करते थे कि सर आएंगे, तो वो उन बच्चों से उसी अंदाज़ में उनकी उम्र के लिहाज से ऐसे गुफ्तगू करते और पढ़ाते कि बच्चे बहुत दिलचस्पी से उनसे सीखते थे। लेकिन 1 साल का भी वक्फा नहीं गुजरा होगा कि सर को फिर वापस आना पड़ा। वहाँ कुछ ऐसी सियासी करतबबाजियाँ हुई कि सर को मजबूरन वहाँ से वापस CM हाई स्कूल आना पड़ा। ये नज़्म उसी तरफ इशारा करती है। सर के अंदर ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि वो आला सतह पर पढ़ाएँ, जहनों की आबियारी करें, क्योंकि स्कूल के बच्चों के दरमियान तो वो ज़बान के बरोबर सिखा ही रहे थे, क़वायद भी सिखा रहे थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाएँ। जो एक बहुत अजीब सा वाक़या उनके साथ हो गया कि वहाँ से उनको वापस आना पड़ा। हम लोगों ने क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक CM स्कूल में उनसे पढ़ा। और उनका आजकल क्या है, अगर आप किसी उस्ताद से मिलने जाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे और पूछेंगे क्या बात है, वहीं से वहीं आँख पर लौटा देंगे। कैसर शरीफ साहब ये क्या करते थे, अगर आप उनके घर गए उनसे मिलने, पहले तो आपकी खातिर तवाज़ा करेंगे, फिर आपको वो छोड़ने बस स्टैंड तक जाएंगे। जो भी उनके शागिर्द यहाँ मौजूद हैं, जो उनके अहबाब यहाँ मौजूद हैं, वो इस बात से वाकिफ़ होंगे कि उनके अंदर ये एक खिदमत एहसास था कि वो, अगर आप शिवपुर जा रहे हैं या हसन भाई के मकान पे हम लोग जाते थे, लाख मना करते कि सर हम लोग चले जाएंगे, लेकिन वो मोड़ तक आते थे छोड़ने के लिए। शिवपुर में भी यही था, चाय वाले की दुकान का जिक्र हुआ, वहाँ से चाय पिलाने के बाद कभी घर पे चाय नहीं पिलाएगी तो वहाँ चाय पीनी है, बस में बैठ गए तब उसके बाद चाय। तो ऐसे असातिज़ा बहुत कम होते हैं जो अपने शागिर्दों का इस तरह से ख्याल रखते हैं। और एक उनके अंदर जो खूबी थी कि अगर उनके किसी शागिर्द की कोई तख्लीक किसी मैगज़ीन में या अखबार में शाया हुई है तो फ़ोन करके उस मुबारकबाद देते, और अगर उस तक वो पर्चा नहीं पहुंचा है तो वो पर्चा खुद अपनी जेब ख़ास से ख़रीद कर वो उस तक पहुंचाते, घर पे रखते, जब वो आता तो उस नज़र करते कि इसमें आपकी तकलीफ चाहिए। तो उस्ताद वही होता है जो अपने शागिर्दों की हौसला अफजाई करे, और शागिर्द वही होता है जो अगर उस्ताद ने उसके साथ कुछ भी किया है तो वो उसको याद रखे, फरामोश नहीं करे। वो ये नहीं सोचे कि आज इस उस्ताद की ज़रूरत है तो उसके साथ है, कल उसकी ज़रूरत होगी उसके साथ रहेंगे और हम भूल जाएंगे। ये सादतमंदी वाली बात नहीं होती। कैसर शरीफ साहब ने ये तरीक़ा सिखाया, ये तहज़ीब सिखाई, ये सलीक़ा सिखाया अपने शागिर्दों को कि अपने उस्ताद के साथ रवैया हमेशा एक जैसा रखो। हम लोग जब यूनिवर्सिटी पहुँचे तो सर वहाँ मौजूद थे। वहाँ दबीर साहब भी इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने तकरीबन 10 से 12 बरस तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और इकबाल पर्चा उनका ख़ास था जो पढ़ाई करते थे। जुमे के दिन उनकी क्लास हुआ करती थी, जुमे की नमाज के बाद 2 बजे से क्लास हुआ करती थी, और सारे स्टूडेंट हम लोग इंतज़ार रहते थे कि सर कब आएँ क्लास करें। फर्स्ट ईयर में अगर उनकी क्लास है तो पुराने स्टूडेंट भी मौजूद है, उन्हें अगर कुछ पूछना है निसाब के हवाले से, इम्तिहान की तैयारी के हवाले से, या सीनियर स्टूडेंट है उनका क्लास नहीं करते वो आके बैठ जाया करते थे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की MA में दाखिला नहीं लिया था, लेकिन जुमे के दिन वहाँ पहुँच जाते थे और क्लास में शामिल होते थे। तो ये कैसर शरीफ साहब की मोहब्बत थी, उनके पढ़ाने का अंदाज़ था, ये बहुत कम हो गया है आज के लोगों में। और कैसर शरीफ साहब बेशुमार लोगों के हवाले से ज़िंदा हैं जो उनके शागिर्द हैं। उन्होंने अपने शागिर्दों को बनाया। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि प्राइमरी सतह से लेकर यूनिवर्सिटी की सतह तक और क्लर्क से लेकर आला अफसरान तक एक बड़ी तादाद, एक लंबी फहरिस्त है उनके शागिर्दों की। और उर्दू अकेडमी का ख़ास तौर पर शुक्रिया कि उसने ये जलसे का एहतमाम किया। मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर उर्दू अकेडमी कैसर शरीफ साहब के फ़िक्र फ़न के हवाले से कोई किताब लिखवाए तो ये असल खराज अक़ीदत होगा। ये हम सब उनके शागिर्दों का भी हम उन पर कर्ज़ है कि उन्होंने जो हमारे लिए किया, अब हमारा वक्त आया है कि हम तहरीरी तौर पर भी उन्हें खराज अक़ीदत पेश करें, ताकि आने वाला मौलिक जो है, आने वाला मुहक़्क़िक़ जो है, उसके हवाले से भी बता सके कि वो एक अजीम शायरी नहीं, अजीम नसर निगाही नहीं, अजीम इंसानी नहीं, अजीम उस्ताद थे जिसने बेशुमार ऐसे लोगों को दरियाफ्त किया, बेशुमार ऐसे पत्थरों को एक नई शक्ल दी कि आज वो जगमगा रहे हैं, आज उनकी अपनी पहचान है, और उसके पीछे अगर कोई है तो वो कैसर शरीफ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। यकीनन जो है बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं कि कैसर शरीफ साहब जो है चंद महीनों के लिए एक कॉलेज में भी गए, वहाँ भी बच्चों को अदब और तहजीब सिखाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तुम में बेहतर वो है कि जिसका अखलाक नहीं। यकीनन जो है कैसर शरीफ साहब का अखलाक बुलंद था, और जिस तरह के वाक़यात यहाँ पर अभी पेश किए गए या कोई ऐसी बातें कही गई हैं जिससे ये अंदाज़ा यकीनन लगाया जा सकता है कि
कि कैसर शरीफ साहब की शख्सियत ऐसी ही रही है जिन्होंने हमेशा अपने अजीज़ को अजीज़ रखा, रफ़क़ा के साथ या दोस्तों के साथ, शागिर्दों के साथ, सबों के साथ यकसा सलूक किया, और यही जो है आज उनकी इनफरादियत है। और इसी इनफरादियत की वजह से मैं समझता हूँ कि कैसर शरीफ साहब बहुत ही निकल के जिंदा रहे थे हमारे दरमियान बाहर। और मज़ीद बातें करने के लिए मैं चलता हूँ नसीम अजीज़ साहब के पास, क्या आप अपने ख्याल के गो कि उन्हें बहुत तवील ज़िंदगी मिली थी, और सबसे अच्छी बात यह है उनके हवाले से ये बात कही जा सकती है कि उन्होंने अपने खुद को कई खानों में बांट रखा। न सिर्फ वो एक मुश्किल उस्ताद थे, सहाफ़ी थे, निसाबी किताबों की तैयारी करते थे, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो किताबें लिखना चाहते थे या ट्रांसलेशन करना चाहते थे, उसमें वो हर तरह से पेश रहते थे और उनके जहन साजी करते थे, और बहुत सारे रमूज़ जो है वो सिखाते थे कि भाई ट्रांसलेशन में क्या क्या बातें होनी चाहिए। कुछ मेरे भी दोस्त थे, उन्होंने भी अपने कुछ बातें शेयर की हैं। आमतौर से ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से खुद को दूर रखते हैं, हमारे पास जो फ़न है उसको कहीं मुंतकिल करना नहीं चाहते, किसी को उसका हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते या अमीन नहीं बनाना चाहते। लेकिन उनके यहाँ ऐसी बात नहीं थी। बिलखुसूस एक कमज़ोरी थी उनके यहाँ कि उनका जो अपना हल्का था उसकी तरफ ज़्यादा उनका मुशफ़िक़ाना नज़र था, और ये होना भी चाहिए। इसलिए कि भाई उन्होंने एक बहुत बड़ी जमात, मुनीर न्याज़ी साहब ने एक मरतबा ये कहा था कि आपकी सलाहियत जो है, जो इस्तेदाद है, बेपनाह सलाहियत है, वो जिस तरह से आप अपने वक्त को तकसीम कर रहे हैं, अगर वो आपकी चीज़ें जो तख्लीक़ात हैं वो मंजर आम पर आ जाती है। अगर आप सांस की धार की इशाअत के साल को अगर मलूज़ रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 1977 में शायद गालिबन ये मजमूआ आया था। उसके बाद एक बहुत तवील जो है वक़्फ़ा है उनकी शायरी का। ऐसा नहीं कि वो रोज़ाना कुछ न कुछ नहीं लिखते थे या उनके पास तख्लीक़ात कम थी, लेकिन उनके साथ मसला ये था कि वो इतने हिस्सों में बटे हुए थे कि वो अपने कलाम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं वाक़ा हुए। ये उनके बहुत से ऐसे शागिर्द हैं, उनके असरार पर उन्होंने कई चीज़ों को वो जमा की, उसके बाद फिर उन्हें किताबी शक्ल दी। अभी मैं उन्हें सुन रहा था, वो रानीगंज गए थे, साले 9 के मौका पर एक गज़ल कही थी। उस गज़ल में भी उनकी ताज़ा ज़हनी कैफियत का के बहुत सारे डांटे जो है उसमें नजर आ रहे थे। जैसे वो उनका वो मतलब है कि फिर नए साल का आगाज़ हुआ चाहता है, फिर नए साल का आगाज़ हुआ चाहता है, देखिए कौन सा दरबाज हुआ चाहता है। और एक बड़ा अजीब सा शेर कहा उन्होंने, आपको समझे इसको कि निगाहे यार से हम ताज़ा जराहत मांगे, निगाहे यार से हम ताज़ा जराहत मांगे, हाल दिल का नज़रअंदाज हुआ चाहता है। जो लोग शायरी के रमूज़ से वाकिफ़ हैं, मुशद्दद अलामियत से वाकिफ़ हैं, वो समझें कि इस शेर का पस मंज़र क्या हो सकता है कि निगाहे यार से हम ताज़ा जराहत मांगे, हाल दिल का नज़रअंदाज हुआ जाता है। और मक्ते में ये कहा है कि शोहरत अंदोज नहीं तब ए हज़ी कैसर की, शोहरत अंदोज नहीं तब ए हज़ी कैसर की, रह के गुमनाम वो मुमताज़ हुआ चाहता है। मैं ये समझता हूँ कि वो गुमनामी उनके हिस्से में नहीं आई है, बहुत फर्दी अजीज़ी आई है और उनकी कदर अफ़ज़ाई हुई है, बहुत तौक़ीर उन्होंने पाई है, और वो गुमनाम तो बेशक नहीं थे। लिहाजा उन्होंने जो इस शेर में अपने रुख को उसमें पेश करने की कोशिश की है, अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे, उनकी कब्र को मुनव्वर करे। और इससे ज़्यादा बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन ये मौका नहीं कि उनके हवाले से बहुत सारी बातें की जाएँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। उसको ऑफ कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब अजीज़ साहब। और मैं ज़ामत देना चाहूँगा इज़हार रब साहब को, जो अभी कैसर शरीफ साहब ज़िया अंजुमन तरक़ हिंद के सदर बने, और उन्होंने बहुत करीब से कैसर शरीफ साहब को जाना है, पहचाना है। सदर जलसा और तमाम मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं
चूँकि ऑफिस का दिन है, मुझे पहुँचने में भी देर हुई, तो मैं छूट ही गया कि कहाँ से क्या क्या बातें हो गई। तो बहरहाल मैंने जो बातें अब तक सुनी हैं और कैसर सईम साहब के साथ जो मेरे मरासिम रहे हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आमतौर से ऐसे तमाम शायर, अदीब, सहाफ़ी हैं मौजूद जो कोशिश करते हैं कि वो नुमायां हों। कोशिश है और ये होनी भी चाहिए, लेकिन कैसर सईम साहब की जो शख्सियत, उनका रख रखाव, उनका जो पहनावा एक कलंदर जैसा, मैंने जब देखा है उन्हें तो वो ऑलरेडी अपने मुलाजमत से सुबकदोश हो चुके हैं। मैं पहली बार जब उनसे मिलने के लिए गया तो हसन साहब के वो घर पे मुलाकात हुई थी, तब वो अंजुमन से वाबस्ता नहीं थे। तो हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसी हवाले से उनसे मिलने के लिए गए थे। तो गर्चे मेरी पहली मुलाकात थी, लेकिन उनकी गुफ्तगू से ये महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे शागिर्दों में तो नहीं है, लेकिन मेरे शागिर्दों के दोस्त में शामिल है। मैंने कई अपने दोस्तों का जिक्र किया कलकत्ते में, जो लोग मौजूद हैं, इस महफिल में मौजूद हैं, कि भाई उनसे मेरे मरासिम हैं, मेरा ताल्लुक तो उल्टी से है। तो जाहिर सी बात है कि हमसे उनसे वो दर्स व तदरीस के हवाले से हम उनके शागिर्द नहीं हो सके, और इसका मुझे अफसोस रहा कि कैसे काबिल उस्ताद की निगरानी मुझे नसीब नहीं हुई। जब उनको मैंने देखा है कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद में जब एक बहरान सा आया और काफ़ी चेंज आने वाले थे, काफ़ी तब्दीलियां आने वाली थी, उस वक्त उनको जब सदारत के लिए कहा गया तो पहले तो थोड़े परेशान हुए, लेकिन बिल्कुल जब उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की तो मैंने अंजुमन के बेशतर मीटिंगों में उनके सदारती खुतबे को सुना, और ऐसे दूसरे प्रोग्राम में, मुशायरा में भी मैं शामिल हुआ। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आमतौर से सदर महफिल जो होता है, थोड़े कभी न कभी चेहरे से वो ताहट झलकती है, क्या कितना लोग बोल रहे हैं भाई। लेकिन ये चीज़ मैंने कैसे सईम साहब को देखा, और ये मुझे यकीन आता है कि ऐसा शायद बहुत कम लोग होंगे जो हर एक तकरीर को, चाहे वो ग्रामर से या कुछ कवायद में कुछ गड़बड़ी हो, तलफ़ुज़ की बात हो, वो बराह रास्त नहीं बोल करके अपनी पूरी तकरीर में ऐसे अल्फाज को ज़रूर ले आते जहाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं। ये एक उस्ताद की खूबी थी कि पता भी नहीं चला किसी को कि किसने क्या कहा था। उन्होंने अपने ये नहीं कहा कि इसने ऐसा कहा था, अपनी तकरीर में उस लफ्ज़ को शामिल कर लिया, और इससे जाहिर होता है कि ये जो उस्तादाना जो बसीरत है, उस्ताद इसमें काफ़ी बैठे हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, और सब लोग अपने अपने दुनिया में एक मोतबर नाम है। कैसर सईम साहब की सबसे बड़ी खूबी मुझे समझ में आती है कि यह हश्त पहलू शख्सियत, जो शायर, मुअल्लिम भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये तीनों से मुंसलिक, सहाफ़ी, और सबसे जो बड़ा उनका जो हमको लगता है कि रोल रहा है कि बंगला किताबों से, निसाबी किताबों से उर्दू में तर्जमा करना, ये बहुत बड़ा काम रहा उनका। और मैं एक बार जब वो तर्जमा कर रहे थे, उसी दौरान मेरा जाना उनके पास हुआ था, तो मैंने एक सवाल पूछा, बिना बांग्ला कब सीखे? एक बच्चे से सवाल था मेरा, कब सीखे? तो उन्होंने ये नहीं बताया, बल्कि बताया कि सीखते सीखते सीख गए आप। और ये नहीं कहा कि हमने फला पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सीखते सीखते सीख गए, और अभी मैं सीख रहा हूँ, ये नहीं कि उस्ताद हो गए। तो ये बहुत बड़ा रोल रहा है, और उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन रहे हैं। तो हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं कि आज उर्दू एकेडमी ने एक बहुत अहम फरीज़ा अंजाम दिया है, और मैं डॉक्टर नईम अली साहब की राय से बहुत मुत्तफिक हूँ कि एक तो ऐसा कुछ रिसाला निकले, और इतने सारे अवार्ड हैं
اس ایوارڈ میں قیصر شمیم صاحب کے نام سے بھی ایک ایوارڈ کا اجرا ہو تو بہت اچھا ہو، اس لیے کہ ہم اگر اپنے اسلاف کو یاد نہ رکھیں تو آنے والی نسلیں بھی ہمیں شاید بھول جائیں. اور یہ وہ شخصیت جو ایک فرد واحد نہیں، ایک تحریک، ایک جہد مسلسل، ایک عام فرد نہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار ان کے طالب علم، وہ بھی شاعر ہیں، ان کے زبانی کچھ گفتگو اشہر ہاشمی صاحب سے غالباً یہاں شاید تو موجود نہیں ہے. اشہر ہاشمی صاحب نے اپنی کتاب میں دیا ساگر ودیا ساگر، اس کتاب میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے. میں نے بہت پہلے ہی پڑھا ہے، پوری بات تفصیل سے یاد ہے، کہ اتنا دھیان ہے کہ ان کے یہ فارم بھرنے کا لاسٹ آخری دن تھا اور وہ شام کے وقت پریشان تھے. انہوں نے پوچھا کہ فارم بھرا کہ نہیں، تو وہ ٹالنے لگے اور پھر وہ جس طرح سے بھی ہو وہ ان کو مجبور کی کہ رات والے شفٹ میں جا کر کے فارم بھر کر کے آئیں. تو ایسے استاد نہیں ملتے کہ بھائی جو بچہ پڑھنے نہیں جا پایا، فارم نہیں بھر پایا، اس کا بھی دھیان رکھتے ہیں. انجمن ترقی اردو ہند کے جب صدر ہوئے، اس بیچ میں صحیح معنی میں بولیں کہ انجمن ایک ادبی انجمن بنی. تقریروں میں لوگ محتاط ہونے لگے کہ پکڑے جائیں گے. یہ بہت بڑی بات تھی. لوگ بولنے سے ذرا سر بیٹھے ہیں تو کیا بولیں، تو بہت مختصر ہو جائے گا. ایک طرح سے ایک بات تھی، بلکہ وہ بولتے تھے کہ آپ لوگ بلا جھجک کہیے. قیصر شمیم ایک شاعر ادیب آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہے، قیصر شمیم ایک انجمن کے صدر کی حیثیت سے بیٹھا ہے، اور آپ کی تمام باتیں آپ دل کھول کے کہہ سکتے ہیں، چاہے ناراضگی. ایک دو بار ایسا بھی ہوا کچھ لوگ کچھ کڑے جملے بھی بول جاتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، بولنے کی بیماری رہتی ہے، جو کس موقع سے کیا کہنا چاہیے. میٹنگ چل رہی ہے انجمن کی، اس کے حوالے سے بھی اس کی بھی شکایت، اس ادارے کی شکایت بھی ہو رہی ہے. یہ معاملہ ہے ہم لوگ کے ساتھ کچھ زیادہ. تو اس وقت انہوں نے کافی ایک تھوڑی سی برہمی پہلی بار دیکھی ان کی تقریر میں، تھوڑی برہمی کہ بھائی یہ جو چغل خوری جو ہے، غیبت جو ہے، گناہ ہے. کہیں نہ ذکر کیا انہوں نے کہ فلاں صاحب نے ایسا کہہ دیا. اب سمجھ جائیے، جس نے کہا وہ سمجھ میں اس کو آ گیا، شرمندگی ان کے حصے میں آئی. اب یہ ہے کہ آج کا دن اتنے معتبر لوگ یہاں موجود ہیں، بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ قیصر شمیم صاحب پر ایک باضابطہ سیمینار ہو، جہاں بہت سی باتیں جو ان کی تخلیق کے حوالے سے لوگ کہنا چاہتے ہیں، ان کے ایک پہلو کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں، وہ کہیں. تعزیتی جلسے میں مجھے لگتا ہے کہ تعریفی کلمات کے علاوہ اور کوئی چیز نکل کے آنی بھی نہیں چاہیے. عام طور سے ہوتا ہی ایسا کہ عام آدمی بھی انتقال کا تو لگتا مرنے والا بڑا اچھا آدمی تھا، لیکن قیصر شمیم صاحب کے لیے مبالغہ آنا ہی نہیں ہے. وہ بلا شبہ اچھے آدمی تھے، اور جب تک ہم لوگوں کا حافظہ ہے وہ اچھے آدمی کے روپ میں ہمارے ذہن میں رہیں گے. شکریہ. بہت بہت شکریہ اعزاز اعظم کا کہ آپ نے قیصر شمیم صاحب کے حوالے سے نہ صرف گفتگو کی بلکہ ایوارڈ کے سلسلے میں گفتگو کی ہے. قریب وہ صدر بیٹھے ہوئے ہیں، صدر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے درمیان اور ایک شخصیت ہیں ظہیر انور صاحب. میں سے ملتے ہوں کہ آپ نے خیالات کا اظہار کریں. جناب ظہیر انور. میں یہ بتاتا چلوں کہ اکیڈمک نے چند لوگوں کو کہا تھا، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو گفتگو کرنی ہے، لہٰذا انہیں لوگوں کو زحمت دی جا رہی ہے. صدر محترم، ٹھیک ہے، اور دیگر مہمانان کرام، قیصر شمیم صاحب کے تعلق سے اتنی باتیں ہو گئی ہیں اور کڑے بات کرنے کے لیے اب ہمارے پاس کچھ رہا نہیں ہے زیادہ. اور ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں ہم ان صفات پر نگاہ ڈالتے ہیں جن سے ہمیں روشنی ملی. بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ
जीना ही निहायत संगीन अमल है। To live is the rarest thing in this world. Most people exist. बहुत सारे लोग सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, वो जीते नहीं, वो जन्म गंवा कर जाते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसी हस्ती है जो गुजर गई है, लेकिन उसकी खुशबू चार दामों पर है। कहने का मतलब ये है कि आप उन्हें एक उस्ताद की हैसियत से देख रहे हैं, एक इंसान की हैसियत से देख रहे हैं, और उनके अंदर एज अ शायर, अदीब और दूसरी तमाम चीज़ें, उसको जज करने का, अभी अभी किसी ने जज करने की हल्की सी कोशिश की थी, जज करने का वक्त नहीं आया, दर्द को ज़रा जमने दीजिए। उनकी एक एक चीज़ का तजिया होगा, बेहतर तरीके से होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बहैसियत उस्ताद, बहैसियत इंसान, बहैसियत एक कम्युनिकेटेबल अथॉरिटी के तौर पर उन्होंने अपने तमाम मिलने वालों पर बड़ा मुस्बत असर कायम किया है। तो ऐसे लोगों के लिए मौलाना रूम ने कहा था, बाद अज़ वफात तुरबत मा दर ज़मीन मजू, दर सीना हाय मर्दुमे आरिफ मदार मास। ऐसे लोगों का मदार लोगों के दिलों में होता है, आरिफों के दिलों में होता है। ये वो लोग हैं जो जी कर जाते हैं, वरना माटी के कच्चे गागर को क्या खोना और क्या पाना हो। माटी को माटी रहना है और माटी में मिलना है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जिनके बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू को, लफ्ज़ को ज़रा सा मैं बदल दूं, अगर मैं कहूँ कि डायमेंशंस हैं, तो हर आदमी अपने तौर पर उन्हें कह सकता है। एनेक्डोट्स की बात मैं क्या करूँ, मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया, कैसा वाक़या पेश आया। मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ इसातिज़ा हज़रात ऐसे होते हैं जो ऑल टाइम टीचर होते हैं, फुल टाइम टीचर होते हैं। मैं एक दिन इस रास्ते से गुजर रहा था, रात के 10:30 से 11 बजे, और शिबली साहब वापस आ रहे थे, तो उन्होंने हमें पकड़ कर कहा कि बीबी यहाँ के इस तरफ कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा घर किधर है। ये तो गलत बात है कि आप इतनी रात दूसरी सिमत जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कुल वक्ती उस्ताद, और ऐसे ही नाम कैसर शमीम साहब का। कैसर शमीम साहब को हमने बरसहा बरस देखा है, उनसे बेपनाह गुफ्तगू की है, ज़ातियात पर, अदब पर, तनकीद पर, शायरी पर, शायरी के रुमूज़ पर, और इन तमाम बातों के दरमियान मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाया है वो एक अलग डायमेंशन है। He was a patient listener. सब्र आज़मा सुनने वाला बहुत कम मिलता है। आप बात करते हैं और ज़हन कहीं और होता है, लेकिन ये वो शख्स है जो बिल्कुल खामोशी के साथ अपने सामने बैठे वाले की हर बात को सुनते रहते थे। तो ऐसे पेशेंट लिसनर बहुत कम होते हैं। अदब की गुफ्तगू हुई, किसी नॉवल पर बहस व तमीज़ हुई, किसी ड्रामे पर बातचीत हुई, किसी खाका निगारी की किताब पर बातचीत हुई, तो ऐसे शख्स जिनके आस पास किताबें बिखरी रहती थी, वो कहते थे मुझे भी ये किताब पढ़वा दो। यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत सा रोशनी टू द अदर साइड ऑफ द टनल निकलता है कि बगैर पढ़े, बगैर किताब से ताल्लुक बनाए, बगैर लफ्ज़ों के साथ संबंध किए आप बहुत दूर तक जा नहीं सकते। उम्र के इस सरहद पर कलकत्ता नॉवेल, कैलकटा, शायद आप लोगों को मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल, अंग्रेजी का नॉवेल है, और उसको शाये हुए 3-4 साल हुआ है। मैंने उस नॉवेल को पढ़ा, उनसे बहुत देर तक गुफ्तगू की, तो फिर मैंने कहने लगे कि किताब मुझे चाहिए। मैंने उनको किताब दी, मैंने समझा कि ये 3-4 महीने में किताब मैंने पढ़ा, और उसकी खूबियों पर, उसकी खामियों पर, या उसके आइकॉनोक्लास्ट किस्म के जो थीम्स थे, उस पर बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। और मुझे ऐसा लगा कि जो आदमी रवायत परस्त होता है,
जो आदमी गुजरे हुए ज़माने की खुशबू को लेकर चलता है वो आदमी आने वाले दौर से भी अच्छी तरह वाकिफ है। ये बहुत अहम बात है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए दो बातों का होना बड़ा ज़रूरी होता है और वो बातें होती हैं ह्यूमिलिटी, इनकिसारी को अलग अलग नामों के साथ, अलग अलग लफ्ज़ के साथ यहाँ पर तमाम लोगों ने फैलाया है। और इनकिसारी आम आदमी, मामूली आदमी की सिफत नहीं है। इनकिसारी एक ऐसी सिफत है जो बड़े बड़ों की सिफत होती है। इनकिसारी ऐसी सिफत है जो टी.एस. एलियट की सिफत थी। इनकिसारी एक ऐसी सिफत है जो इकबाल और गालिब की सिफत थी, अपनी तमाम तर खुदी के बावजूद, एगोस के बावजूद। और यही बात उनको दूसरों से बहुत आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ाते हुए उनको इंसानियत से जोड़ देती है। He becomes popular। महबूबियत और मकबूलियत उसी के बाद शुरू होती है जब वो हर आदमी से कहते हैं। अभी किसी ने कहा कि इन्हीं ने कहा कि हर शख्स ये समझता है कि वो सबसे ज्यादा वही उन्हीं को चाहते हैं। तो ये एक सिफत भी हो सकती है और ये बहुत जहानत का काम भी हो सकता है और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये कुछ इससे डेविएट भी करना चाहिए नहीं, लेकिन ये मौका नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि गर्द उन पर काम हुआ है, ऐसा नहीं। उन पर एक किताब आई है, कैसर शमीम शख्स और शायर, उनके बहुत सारे शागिर्दान हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कैसर शमीम साहब बेखुद साहब के शागिर्द थे। मैं आपसे जब मैं सही कह रहा हूँ, कैसर शमीम साहब बेखुद साहब से शागिर्द थे और बेखुद साहब वहशत के शागिर्द थे। तो कोई कह सकता है कि वहशत किसके शागिर्द थे? Is there anyone who can give me some clue? भाई शायर अब देखिए रवायत कहां से कहां पहुंच गई। अब देखिए रिश्ता कहां से कहां पहुंच गया। क्या दाब के शागिर्द नहीं थे, बेपनाह शागिर्द थे। तो कैसर शमीम ने अगर इतने शागिर्दों को अपने इर्द गिर्द रखा था और उनको उनके हाथ में कलम दे दी, उनके हाथ में तवाज़ुन दे दिया, उनके हाथ में शायरी के रम्ज़ को थमा दिया, तो ये बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा है कि आप जज्बाती होकर, बेपनाह इमोशनल होकर सिर्फ उनकी तारीफ नहीं कर सकते। आप उनको निहायत तज्जियाती सतह पर भी अगर देखेंगे तो आदमी फरिश्ता सिफत नजर आता है। अगर ऐसा है तो ऊपर एक जन्नत है, तमाम लोगों का एतबार और तमाम लोगों का ईमान है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वहीं जगह पाएंगे, वहीं जगह। आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्म मुंदमिल हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें भूल जाएंगे लोग। आप 2-4 रिसाले भी निकाल लेंगे और 2-4 नंबर भी निकाल लेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अदब, फन, फिक्र, ये तमाम चीज़ें अपना रास्ता खुद बना देती हैं। उनके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छी चीज़ होगी तो देर तक और दूर तक जाएगी। न अब वो यादों का चढ़ता दरिया, न कुर्बतों की उदास बरखा, यूं ही जरा सी कसक है दिल में जो जख्म गहरा था भर गया। खुदा बहुत शुक्रिया ज़ैन साहब। हमारे साथ का सजीव साहब हमारे से बैठे बैठ कर बोलिए, तो बुजुर्ग है माशाल्लाह। सदर मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, आज हम लोग एक ऐसी इल्मी अदबी शख्सियत के विसाल के बाद
تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جو بہت ہی اچھے شاعر، ادیب، معلم اور اچھے انسان بھی تھے۔ بقول بزرگان ادب ایک اچھا انسان ہی اچھا شاعر ثابت ہو سکتا ہے۔ قیصر سمیم صاحب کی حیثیت ایسی جنہیں سننے کے لیے سماعتیں متوجہ ہو جایا کرتی تھیں، جن کی آواز بے توجہی کے شور و گل میں گم نہیں ہو پائی، جن کی حیثیت یگانہ روزگار کی تھی۔ وہ شاعر جو شاعری کے رموز و نکات سے پوری طرح واقف تھا اور شعر گوئی کے فنی تقاضوں کا بھی ادراک تھا ان کو۔ تو آپ سوچئے کہ ان کی شاعری جب منظر عام پر آئی تو اس کو سننے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے توجہ کی ضرورت پڑی۔ ان کی شاعری ایسی نہیں تھی، ان کا جو مجموعہ کا نام آیا تو وہ ایسا مجموعہ نہیں تھا کہ سرسری طور پر نظروں سے گزر جائے۔ ہم لوگوں نے بہت ہی توجہ سے پڑھا ان کے سارے مجموعے جتنے بھی آئے، اور یہ محسوس کیا کہ واقعی قیصر سمیم صاحب نے جو شاعری کی ہے اس میں فنی تقاضوں کا بھی لحاظ رکھا ہے، زبان و بیان پر بھی ان کو دسترس حاصل ہے، اور شعر گوئی کہنے کا جو سلیقہ ہے وہ بھی رہتا ہے۔ ایک شاعر اپنے کلام سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس درجے کا شاعر ہے، اور شاعری جو قیصر سمیم صاحب کی شاعری یقیناً اس لائق ہے کہ اسے درجہ اعتبار حاصل ہوا۔ اب آپ سوچیں گے کہ قیصر سمیم صاحب نے شاعری کی، معلمی کی اور مترجم کے فرائض بھی انجام دیے، اور بہت سارے کچھ ترجمہ انہوں نے کیا۔ ابھی بھائی نے بتایا کہ وہ درسی کتابوں کا ترجمہ انہوں نے کیا، لیکن درسی کتابوں کے علاوہ انہوں نے گیتانجلی کی نظموں کا بھی ترجمہ کیا۔ میں نے بغور ان کے تراجم پڑھے، ان کی نظمیں ترجمہ شدہ، تو یہ محسوس کیا کہ قیصر سمیم صاحب نثری ترجمہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک منظوم ترجمہ بہت بڑا کام ہے، اور پھر ایسے شاعر کی نظموں کا ترجمہ جس پر آپ ایک حرف تبدیل نہیں کر سکتے، بڑی پابندی، چونکہ اس کی باریکیوں کا مجھے علم ہے۔ میں نے بھی گیتانجلی کی 10 نظموں کا ترجمہ کیا کسی کی فرمائش پر، تو مجھے اس کی باریکیوں کا ادراک ہے کہ کس ڈھنگ سے ترجمہ کرنے میں کتنی دشواری پیش آتی ہے، اور اس کو بحسن خوبی قیصر سمیم صاحب نے منظوم ترجمہ کیا، جو ان کے یہ زمین چیختی ہے کتاب میں ان کے تراجم موجود ہیں۔ قیصر سمیم صاحب کی ذات ایسی تھی جو کہ مختلف خانوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ان کے اندر جیسے بتایا آپ نے ایک بڑی خاکساری بھی تھی، انکساری بھی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بڑے شاعر ہونے کے باوجود اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ زمانہ ان کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے اور کرے گا۔ حضرات گرامی، مجھے قیصر سمیم صاحب سے بارہا ملنے کا اتفاق ہوا، کم از کم 4 دہائیوں سے ان کے تعلقات تھے، اور اول 10 سال تو میری وہ نوماشری کا زمانہ تھا، اس کے بعد جو مجھے ملاقاتیں ہوتی رہیں،
اور کبھی کبھی انہوں نے شکایت مجھ سے کی کہ آپ نے مجھے اپنی کتاب نہیں دی، کہ آپ مجھے اس لائق نہیں سمجھتے. میں نے کہا حضرت میں دوسرے دن دوڑ کر گھر پہنچ گیا کہ میں اب آپ کو اپنے گھر جا کر آپ کے گھر جا کر آپ کے دولت خانے پہ جا کے پہنچاؤں گا. میں گیا ان کے گھر پر، دیکھا انہوں نے اپنی بہو سے مخاطب ہو کر میرا تعارف کرایا. انہوں نے جو بات کہی وہ میں نہیں کہوں گا، خود ستائی ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے میری غیر موجودگی میں کبھی اگر یہ آئیں تو ان سے مت کہہ دینا گھر پر نہیں ہے ابا، بلکہ کوئی چائے پلا کر رخصت کرنا. اس کے معنی کہ وہ مہمانوں کا اور اپنے ادب دوستوں کا اس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ میری غیر موجودگی میں کوئی کہ محروم نہیں ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہے، انسانیت کی اعلیٰ مثال ہے. تو میں نے قیصر سلیم صاحب کو دیکھا کہ وہ جتنے بڑے شاعر تھے، اتنے بڑے انسان تھے، ان کے اندر فخر نہیں تھا. اگرچہ ان کی ذات نازش بنگالہ یا نازش دنیا ادب کہیے تسلیم کرتے ہیں. قیصر سلیم صاحب کے ہم عصروں میں جن کو ہم لوگ ادب کا 4 ستون تسلیم کرتے تھے، سالک، لکھنوی، اعجاز افضل، علقمہ شبلی اور اس کی آخری کڑی قیصر سلیم صاحب تھے. تو رفتہ رفتہ تینوں اساتذہ کے گزرنے کے بعد قیصر سلیم صاحب خود کو تنہا محسوس کرتے تھے، لیکن وہ اپنے شاگردوں کے بیچ رہ کر اس تنہائی کے احساس کو وہ سمجھیے وہ پی جاتے تھے، کم کر دیتے تھے. ان کی ذات ایک انجمن کی تھی، میرے انجمن نہیں بلکہ وہ خود انجمن تھے. قیصر سلیم صاحب کی حیثیت سوچئے کہ جن کے استقبال کے لیے عقیدتیں متحرک ہو جائیں، جن کو سر آنکھوں پر بٹھایا جائے، جن کی توقیر کی جائے، جن کی عزت افزائی کی جائے، جن کو اعزاز و انعامات سے نوازا جائے، بلکہ خود اردو اکیڈمی نے بھی ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا، اور ہمارے ندیم الحق صاحب نے بھی اخبار مشرق کے تعلق سے ان کو 21ویں صدی کے پہلی دہائی میں ان کو ایوارڈ سے نوازا، ان کی خدمات کا اعتراف کیا. یہ اب قیصر سلیم صاحب کے بعد لگتا ہے کہ ایک خلا پیدا ہو گیا ہے کہ ہم تو قدرت سے مایوس نہیں ہیں، کارخانے قدرت میں بہت گنجائش ہے، لیکن وقت لگے گا. اگر کوئی آیا تو غنیمت ہے. لیکن ہمارے ساتھ جو قیصر سلیم صاحب نے جو ادب کو دیا اور اہل ادب کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کا حسن سلوک ہمیشہ یاد رہے گا. اور بطور خاص ان کی سمجھیے کہ خاک ساری جو تمام لوگ سے واقف ہے کہ ایک لباس ان کا وہی بہت کوئی رکھ رکھاؤ بھی نہیں تھا، اور لباس بھی میں نے ایک شعر کہا تھا تو وہ تو کہا تھا خود پر، لیکن وہ قیصر سلیم صاحب پر شادی کا آتا ہے کہ جو ملا پہن لیا، کچھ بھی کھا لیا، اپنے رکھ رکھاؤ کا حال کیا کہیں. تو ایسی شخصیت جو جن کی ادب میں بہت بڑی حیثیت تھی ہمارے درمیان سے اٹھ گئی. یقیناً دکھ ہوگا، لیکن ہم ان کے جتنے شاگرد ہیں ابھی موجود، جنہوں نے ان کی آغوش تربیت میں رہ کر ایک مقام حاصل کیا ہے، ابھی بہت سارے شاعر ہمارے درمیان آئے ہیں اور آئیں گے. بہت سارے ایسے اساتذہ بھی ہیں، ابھی مدرس معلم بھی ہیں جنہوں نے ان کی آغوش تربیت میں تعلیم حاصل کی. تو یہ ان کے لیے فخر بات ہے کہ ایسا استاد جو اپنے بعد درجنوں استاد پیدا کر دے. یہ خاصیت سب میں نہیں ہوتی ہے. بہرحال زیادہ یہاں کچھ کہنے کا وقت نہیں ہے اور ان کے اشعار سنانے کا بھی وقت نہیں ہے، اور کسی موقع ہے تو میں سناؤں گا. اگر اجازت ہو تو ایک منظوم خراج عقیدت پیش کر دوں. 2 منٹ لگے گا، میں ایک بار پڑھوں گا. کر گئے اہل ادب کو محو غم قیصر شمیم، جو ہمارے تھے مربی محترم قیصر سلیم. دار فانی میں 86 سال تک کر کے قیام ہو گئے محو سفر سوئے عدم قیصر سلیم. آپ کا فیضان صحبت جو ہمیں کل تھا نصیب، آج اس سے ہو گئے محروم ہم قیصر سلیم. شان فن سے سواری آپ نے زلف سخن، معنیوں الفاظ کو کر کے بہم قیصر سلیم.
ان کی تحریروں پہ کرتا فخر ہے اردو ادب، کل کے فن سے کر گئے ہیں جو رقم قیصر شمیم، ان کا اشک غم خوشی کا استعارہ بن گیا، کر گئے اشعار میں جو شرح غم قیصر سمیم، کون دکھلائے گا اب زور قلم ان کی طرح، جس طرح دکھلا گئے زور قلم قیصر سمیم، سر اٹھا کر زندگی بھر شان سے جیتے رہے، صرف رب کے سامنے تھے سر بخم قیصر سمیم، خوب یہ قسمت انہیں باب حرم تک لے گئی، حج سے فارغ ہو کے آئے محترم قیصر سمیم، ارض طیبہ کی زیارت بھی ہوئی ان کو نصیب، چوم آئے روضہ شاہ امم قیصر سمیم، ان کی تربت پر حسابر رحمتیں سایہ فگن ہیں جہاں آرام فرما حضرت قیصر سمیم۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں محسوس آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی خبر کا اظہار کریں۔ جناب صدر اور بزرگ گرامی، حضرت قیصر شمیم سے میرے تعلقات 1965 سے تھے، خوب زیادہ قربت بھی نہیں تھی، قربت نہیں تھی لیکن محبت اور شفقت بہت زیادہ تھی ان کی طرف سے۔ ایران میں جب کوئی جلسہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد کسی کا، تو وہ تعزیتی جلسہ نہیں کہتے، وہاں شخصی مرثیہ خوانی ہوتی ہے، لیکن وہاں پابندی ہوتی ہے کہ اس شخصی مرثیہ خوانی میں مرحوم کی صرف اور صرف خوبیوں کو، صورتوں کو شخص بیان کی جائے، ان کی علمی، ادبی یا کوئی اور کارنامہ اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دستور دوسرا ہے، یہاں ہم نے ہر 2-3 میرے شامل میں تھا، دیکھا میں نے کہ قیصر شمیم صاحب کو ہر شخص جنت میں بھیج رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگ دعائیں قبول کرے، لیکن ان کی خوبیوں کا ذکر بہت کم لوگ کر رہے ہیں، ان میں ان کی سیرت کا جو حال تھا وہی جنتوں کو لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حافظ شیرازی نے بہت پہلے، کئی 100 سال پہلے کہا تھا اسی قسم کے آدمی کے لیے کہ ہرگز نہ میرا کون کے دلش زندہ شد عشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں، کیسے بھولے گی تجھے اردو زبان، مٹ نہ پائے گا تیرا نام و نشان، خون سے سینچا تھا اس کا گلستان، یاد رکھے گا اسے سارا جہاں، علم کے طالب جو تھے سب فدا، تو نے پائی تھی عجیب حسن ادا۔ حضور گرامی، اخلاق لفظ ایک اخلاق ہے، اس کے عناصر کتنے ہیں، اگر اخلاق پر ہی ایک آدمی قائم رہ جائے، تمام عناصر کو اپنے اندر سمیٹ لے تو ہمارے جنت ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اخلاق مند نہیں ہے میرے پاس نہ آئے۔ اب سمجھیے کتنی اخلاق کی قوت ہوتی ہے، کتنا دم اخلاق میں۔ اور ہم لوگ اپنے بچپن سے لے کر اسٹوڈنٹ لائف سے اب تک ہم لوگ سنتے آتے تھے کہ اگر شہر میں کسی شخص کے شرافت کی قسم کھائی جا سکتی ہے تو ان کا نام تھا صرف اور صرف شاہ مقبول احمد۔ لیکن اس دور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر کسی کی شرافت قسم کھائی سکتی ہے تو آج کے دور میں قیصر شمیم ہے، ہم قسم کھا سکتے ہیں۔ عالم مکارم اخلاق و اتباع رسول کے حامی تھے، وہ شرافت و حسن اخلاق تو ان میں کوٹ بھرا تھا۔ ہم نے کچھ پڑھا ہے ان کے بارے میں تو دیکھا ہے کہ اپنی پوری شخصیت، سیرت، کردار کو انہوں نے اپنی شاعری میں بھی ڈھال دیا تھا، اشعار میں بھی ڈھال دیا تھا۔ اب خودداری اتنی زبردست تھی، میں اس پر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس پہ ان کے اشعار ہیں کہ خود قیصر صاحب سے مانتے ہیں، کہتے ہیں قیصر خدا کا شکر ہے کہ مفلس ہوں پھر بھی ہر صاحب رسوخ کے دربار سے الگ۔ ہمارا شیوا ہے کہ درباری ہم لوگ کرتے ہیں، چھینٹے میرے دامن پہ خوشامد کے نہ آئے، رکھا مجھے بیداغ میری بے طالبی نے۔ درد نہیں تھا کسی سے کا، وہ تو کوئی لالچ بالکل نہیں تھا۔ خودداری اور رونا دھونا، ایک آدمی خوددار ہوتا ہے تو سامنے لوگ روتا دھوتا نہیں ہے، یا اپنی تکلیف کا بیان نہیں کرتا ہے اور اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ وہ مدد کریں گے۔
देखिए तस्वीर खुद कहते हैं, आंसू तो निकलते हैं दिखाता कब, बादीदे तर सामने आता कब, हर दुखी सहा जाता हूँ चुपके चुपके, दुखड़ा में किसी को सुनाता कब। ये तो कश्मीर सर। और एक मामूली बात पर हम एक से शिकायत कर देते हैं, ये जो बड़ी अखलाक एक उनसर है, एक जुज़ है अखलाक मकरीम अखलाक का, कि ये इंसान को तमाम खूबियाँ इंसानी को अल्लाह ताला करीब करती हैं। क्या कहते हैं शिकवा शिकायत के बारे में, कि शिकवे का कोई हर्फ न आने पाए, ये शोला लबों को न जलाने पाए, जो रंग भी हो झेल ले अस्कर दोस्त, दुनिया न हंसी तेरी उड़ाने पाए। ओहदे का लालच भी नहीं था, तमाम बयान किया है कि किसी ओहदे का लालच बने। आपने भी कहा कि बोली कलंदराना सिफात और मुमीनाना, सही माने मुमीन थे ही, वो कलंदरा थे, बिल्कुल सादा तबीयत। इनका सारी बारे में अच्छी बात है कि सामने की इनका सारी में लफ्ज़ आसान नहीं है, इसके दायरे में बहुत सारी चीज़ें आती है। काली मुसलमान होता है या इनका सारी बात होती है, तो खाली इनका सारी नहीं है, अल्लाह ताला ने उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ रखा है। हम लोग कहते हैं उनके सिर में राज है, खाली कहने से नहीं होता है, उसके साथ क्या लवाजिम होते हैं, वो उनमें था, वो और लोगों में नहीं है। कहते हैं कि नाप रहा है क्यों तू ऊंचे ओहदों से, बहुत जगह वो धक्का पहुंचा है, रातों रात उनको उनकी किस्मत बदल गई है। एक ओहदा मिल रहा था, अचानक ओहदा तब्दील हो जाता है, दूसरे उस ओहदे पर आता है, ये सारी फितरत तो तक हो गई। तो कहते हैं नाप रहा है क्यों तू ऊंचे ओहदों से, मेरा कद छोटा है बाबा तेरा क्या, जैसा भी इसमें नकलीपन तो नहीं है असशमीम, ये मेरा चेहरा है बाबा तेरा क्या। फरारोही के बहुत अजीज शागिर्द थे, लेकिन एतराफ़ भी करता, मैंने जितने शागिर्द सबों ने एतराफ़ भी किया है, बहुत से शागिर्द आकर के एतराफ़ भी नहीं करते हैं। मैंने बहुत सालों को कोई विशेष बात कराया, लेकिन उसमें एक ऐसा शख्स भी मानते ही नहीं है, मतलब आपने मेरी भी बदल दी, मैं अपने अल्लाह हमने कर दिया। तो कश्मीर वो बात नहीं थी। जो कहते हैं फरारोही कहता है अपने कि अगर कुर्बे ऐसा मुयसर न होता, कभी जहन मेरा मनोवर न होता, सिखाते न मुझको जो तर्ज तकल्लुम, मैं कुछ और होता सुखनवर ना। रवादारी, ये आपने अच्छा शेर पढ़ाऊंगा कि रवादारी मजहबी रवादारी क्या है, या जो तासुब का या नफरत का सांप जो जहर का सांप डस रहा है हम लोगों को, उसको डसने के तरीका को बना लिया था उन्होंने, और वो था राइटर एसोसिएशन ऑफ हावड़ा। उसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग उसमें शामिल थे। एक ज़माना था कि उसी इंस्टीट्यूट में तमाम कौम को रहते थे, बड़े बड़े लोग उसमें पढ़ रहे हैं हमारे उसी इंस्टीट्यूट में, इसलिए वो एक सेकुलर था आदमी है। उसको क्या कहते हैं कि मेरा मजहब इश्क का है, इसमें कोई तफरीक नहीं, मेरे हल्के में आते हैं तुलसी भी और जामी भी। जामी बहुत बड़ा शायर फारसी का है। अब भैया माफ़ कर देना, ये हमारी आदत हम लोग को नहीं, किसी ने कुछ कह दिया माफ़ नहीं करते, उस पर बदल लेते हैं। लेकिन कश्मीर का जो इस तमाम का अशार है, जिस सीरत को हमने अपने शेर में ढाल दिया है। कहते हैं बुरा किसी का मैं चाहूँ ये शेवा मेरा नहीं, बुरा किसी का मैं चाहूँ ये शेवा मेरा नहीं, जो चाहे कर ले मेरे हर वीर मेरे साथ। और हौसला, एक मामूली स्कूल का टीचर, बाद में कॉलेज का प्रोफेसर, बाद में इंस्टीट्यूट प्रोफेसर, इतनी शोहरत, इतनी मकबूलियत, लेकिन हौसला भी खूब था। कहते हैं मुद्दतों से है मेरी कश्ती तरा तुम आशना, मैं समुद्र से डरूं ऐ दोस्त ऐसा मैं नहीं। हिम्मत भी थी उनका, कम सादगी भी थी, साथ साथ हौसला भी था। और अब एक मैं अहम बात आना चाहूँगा कि हम तमाम लोग हैं, खामी भी है खूबी भी है, लेकिन कोई अपनी खामी गिनवाता होता नहीं है। ये बहुत बड़ा है, अखलाक का एक आम जुज़ है ये इंसान आप हैं, आपको अपनी खामी पर नजर रखनी पड़ेगी। कहते हैं, खुद कहते हैं कि थोड़ी सी शोहरत भी मिली है, थोड़ी सी बदनामी भी, मेरी शोहरत में है कैसर, खूबी भी है खामी भी कैसर। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है चांद में कोई दाग न हो, जिसमें होगी कुछ भी खूबी उसमें होगी खामी भी। एतराफ, अपनी खामी के एतराफ करना आसान बात नहीं है। खुदा गिरामी, तमाम खूबियाँ उनको कैसे मिली थी, कैसे हाथ से मिली थी। और उनका जो दोस्तों घर का था, जस्टिस यूसुफ साहब, सालिक साहब, एजाज साहब और लोग एक गुरु शानदार था, उन्होंने तमाम दोस्तों की खूबियों को अपने अंदर सिमट लिया था। किसी से शराबत
किसी से अमानत, किसी से दयानत, किसी से सलामत, किसी से मोहब्बत, किसी से शोहरत, किसी से इज्जत, ये तमाम चीज़ों को हासिल कर करके इकट्ठा अपने किरदार में समो लिया था। इसीलिए हम कहते हैं कि कैसे शमीम वॉज ग्रेट एज ए मैन। उनके लिए एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये को वाक़या एजाज अहमद साहब ने जब कहा था, अफजल साहब ने उनके हवाले से, तो बड़ी अच्छी बात ये कि शाकिर और वहशत के बाद अगर किसी ने उर्दू खिदमत की है तो कैसे शमीम साहब थे। इतना बड़ा शायर, एक उसे उठाई नहीं, वो चपकली शौर है, नफरत के साथ उठाई नहीं। एक शायर, बड़ा शायर, बड़े शायर की तारीफ कैसे करता है कि ऐसा शमीम ने वहशत और शाकिर के बाद उर्दू की ज़बरदस्त खिदमत की है। पढ़े लिखे लोगों को शायर बनाना तो आसान है, लेकिन बस्तियों में जो कम पढ़े लिखे हैं उनको शायर बनाना मुश्किल है। लेकिन इंकसारी देखिए, वो जवाब क्या देते हैं, कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं शायरगर हूँ, मैंने शायर पैदा किए, मन नस्ल-ए-निगार पैदा किए मैंने, लेकिन जी नहीं, मैंने उर्दू के खाली पैदा किए। मेरे शागिर्द गालिब बने या मूमी बने ना बने, लेकिन उर्दू खादिम ज़रूर बने, ये उनका ख्याल था। एक आदमी जो उर्दू खादिम होता है कैसे वो करता है, एक आदमी तारीफ करता है और उसका जवाब कैसे देता है ये। और सबसे बड़ी बात, जिन दिनों मैं उनके पास गया था सर अपनी किताब लेकर खुद की नसली शाना, तो दूसरा उन्वान दूसरा मैं रखा था, फिर उन्होंने कहा कि इस उन्वान को बदल दीजिए। वो मुझे उस्ताद भाई कहते थे, बेखुद के शागिर्द दो भी थे, बेखुद के शागिर्द में भी था, 10-12 साल ये फर्क है। वो कहते थे तो आप मेरे उस्ताद भाई हैं। उन्होंने नाम बदला, बेखुद की नस्ली शना कर दिया, हमने वैसे निसार नस्ल-ए-निगार लिखा था। और उसी बार चाय के दौरान ही एक आलिम आ गया वहाँ, एक मौलाना तशीफ लाए, मौलाना से तारुफ कराया और कहा जी हम लोग नहीं, से बात है। और मौलाना ने कहा कि असर शमीम साहब के पास मैं बराबर आता हूँ। तशीफ ने कहा कि ये इनसे मैं कुरान सही ढंग से पढ़ना सीख रहा हूँ। ये 20 साल की पहले की बात है। एक आदमी इस उम्र में हज करने के बाद आता है तो उसके पूरा उसका नक्शे बदल जाता है, मजहबी हो जाता है। कुरान सीखना इस उम्र में, गौर कीजिए, कुरान सभी को पढ़ते हैं, लेकिन कितने लोग सही कुरान पढ़ते हैं नहीं जानता है। एक शायर, एक अदीब जो अपनी तमाम कानोबात तो आखिरत भी जमा करके चला जा रहा था और उसने कुरान पढ़ना उस वक्त सीखा। आखिर में मुझे हिंदू मरकीन मेरी किताब थी, उनका भी नाम उन्होंने बदल दिया था। मेरा नाम दूसरा रखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू मरकीन तुम रखो। और जनाब वाली जब भी मुझे, चाहे मैं PSC मेंबर हुआ, चाहे मैं अवार्ड मिला, जब भी मुझे कुछ हुआ, शमीम साहब का फ़ोन ज़रूर आया। मैं एक शेर के साथ बात खत्म करूँगा, जिसको फिर हाफिज़ ने कहा था कि आसाइशे दो गेती तफसीर इन दो हरफ। दुनिया भर की आसाइश जो है सिर्फ 2 हरफों में छुपा हुआ। क्या है कि बादोस्तान तलत्तुफ बदुश्मनान मलाला। और शेक्सपियर ने कहा था जूलियस सीजर में, उनके बारे में हर जो कुछ कहा हर शायर कभी रहता है, इन पर ज़रा आता है कि ही वॉज ए स्कॉलर एंड ए राइट एंड गुड वन, exceeding wise, fair spoken and persuading, lofty and sour to them that loved him not, but to those men that sought him sweet and summer. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया मसूद आज़म साहब की आज बहुत तफसीली गुफ्तगू की। आज़ाद कैसर शरीफ साहब के बयान यूनिवर्सिटी में मकाले भी लिखे गए, कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी मकाले लिखे जा रहे हैं, मुकम्मल भी हो गई है और किताब छपने जा रही है। तो वही तो मकाले तो बात है। नहीं ये हाजिर में एक साहब ने किताब लिखी है, कभी शौरूई छप रहा है, नासिर अली अंसारी साहब ने उन पर तहकीक किया यूनिवर्सिटी से, और किताब बहुत जल्द है उनसे शहूद पे आने वाली है, किताब मुकम्मल भी हो चुकी है। तो ज़ैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि एक इंसान के गुजर जाने के बाद, रुखसत होने के बाद, तब हम उस पर कोई गुफ्तगू कर सकते हैं। और अभी जो गुफ्तगू हो रही है ज़ाहिर है कि ये तासुराती गुफ्तगू है, हम जज्बात में बहकर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अदीब के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। धीरे धीरे जो है मतलब जब साफ़ होने लगता है तो बहुत सारी बातें जो हैं हमारे सामने आती हैं, उनकी खामियाँ आती हैं, उनकी कमज़ोरी आती है। वो अदब के हवाले से बातें होती रहेंगी, लेकिन यह कि वो तकरीबन आज ने इस मजलिस का इसलिए एहतमाम किया है ताकि हम
एक साथ बैठकर एक छत के नीचे बैठकर कैसर शरीफ साहब जैसे शिक्षक के मुताबिक कुछ ऐसी गुफ्तगू करें जिससे हमारे हाफिज़े में बहुत दिनों तक के उनके तासुरात कायम रहे। अब हम चलते हैं सर साहब मोहम्मद नदीमुल्लाह साहब के यहाँ कि उनसे गुजारिश करेंगे सलाती कलमात के साथ साथ अपनी भी ख्यालात के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ख्वाहिश तो ये थी कि हम लोग जो यहाँ एक जगह हुए हैं तो मौका और खुशगवार होता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कैसर शरीफ साहब की ज़िंदगी में जहाँ फानी से जाने के बाद हम लोग यहाँ एक जगह हुए हैं और बयाद कैसर शरीफ के नाम से उनको आज हम लोग याद कर रहे हैं एकेडमी के छत के तले। आप तो सदर थे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के, लेकिन साथ साथ 2002 से 2005 तक इसी एकेडमी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से आपने खिदमत भी अंजाम दी थी। और अभी हमारे हालिम सादी साहब कह रहे थे कि असल में दरअसल हमारी मुलाकात उनसे 2004-05 के दौरान हुई थी, जब हम लोग शुरू कलकत्ता बुक फेयर में अखबार मस्जिद का स्टॉल लगाना शुरू किए थे। और वहीं पर जो है एक अवार्ड का सिलसिला अखबार मस्जिद ने शुरू किया था, तो उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जी कलकत्ता बुक फेयर के मेरे ख्याल से मैदान में जब हुआ करता था तब किसी साल में मेरे ख्याल से 2004 या 5 ऐसा हाफजा भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उस वक्त उनको वहाँ पर बुला कर लेके वो आए थे और वो अवार्ड से उनको नवाजा गया था। लेकिन देखिए कितने, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि भाई मोहब्बत से वो पेश आए हम लोग से। मेरे ख्याल से पहली मुलाकात थी, लेकिन ऐसा लगता था कि भाई हमेशा से उनको हम लोग जानते हैं और मोहब्बत शफकत के साथ साथ वो पेश आए। बहुत दिनों तक हम लोग उसको वो वाक़या को याद रखे। फिर हमने दीगर प्रोग्राम जैसे हुए, हम लोग जो कलकत्ता बुक फेयर में जब साइंस सिटी में गया तो वहाँ मुशायरा भी कराया, उसमें भी वो आकर के हिस्सा लिए और भी हमेशा जुड़े रहे, हम लोग के साथ आते जाते रहे। और एक मौका ऐसा आया कि यहीं तालतला में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का इजरा का मौका हुआ। मेरे ख्याल से 1.5 साल का मौका हुआ, 1.5 साल का वक्फा हुआ है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो पूरी एक खिलकत मौजूद थी और यकीनन समझिए कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का इजरा है और प्रोग्राम वही हो रहा था तालतला पे। तो मैंने नुसरत मैडम को यहाँ फ़ोन किया कि भाई देखिए तो कैसर शरीफ साहब शायद रविंद्रनाथ टैगोर का तर्जुमा किए थे, तो उन्होंने निकाला किताब से और फ़ौरन उसको हमको व्हाट्सएप करके भेज दिया। और मैंने वहाँ पर उस महफिल में इनका जो चल अकेला चलो रे, तो उसका जो तर्जुमा है चल भाई अकेला, कैसर शरीफ का पूरा वहाँ सुनाया। और यकीन मानिए कि मेरे ख्याल से महफिल की शान रही। तो इससे भी हमने उनसे या इस तरह से भी इस्तेफादा किया। और फिर हम लोग जब बाद में यहाँ पर ये एकेडमी की छत के तले जब अंजुमन और एकेडमी दोनों मिल कर करके ये कसम उर्दू के हम लोग जो यहाँ प्रोग्राम किए थे, मेरे ख्याल से कोविड के ठीक पहले जी 21 फरवरी को, जस्ट कोविड के मेरे ख्याल से पहले जी। तो उसमें भी पूरे अंजुमन को लेकर के उनकी पूरी टीम उनके क़यादत में यहाँ मौजूद थी, हम लोग सब मिल कर के उस प्रोग्राम में हिस्सा लिए। तो ऐसे उनसे ताल्लुकात तो थे ही और भी इस तरह से गहरे हुए। और कुछ यहाँ पर हमारे भाई साहब इजहार आलम साहब ने कुछ तजवीज़ पेश की है कि एक फ़िक्र फ़न पर डॉक्टर नईम अनीस ने कहा कि उनके फ़िक्र फ़न पर एक किताब एकेडमी की जानिब से होना चाहिए। एक सेमिनार की भी बात आई कि सेमिनार होना चाहिए, लेकिन जैसे हमारे ज़हीर अहमद साहब कह रहे कि थोड़ा
वक्त जाने दें, उसके बाद फिर इस पर हम लोग और जज्बाती नहीं होकर करके उनके पहलू और खूबियों को हम लोग ठंडे दिमाग से सोच करके उसको उभारे। और एक कैसर शमीम अवार्ड इस एकेडमी से भी होना चाहिए। तो ये सारी तजवीज़ का मैं ऐलान करता हूँ कि हम लोग इंशाअल्लाह इसको ज़रूर जल्द से जल्द इसको टेकअप करेंगे और इसको एक हकीमी शक्ल दे करके इसको हम लोग आवाम के सामने लेकर के आएंगे। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि बस अल्लाह उनको उनके मकाम को और आला करे और दर्जात को बुलंद करे। और हम लोग दुआ गो है कि मग़फ़िरत, ऐसे तो उनके और अल्लाह के दरमियान की बात है, लेकिन हम लोग दुआ करेंगे ज़रूर कि उनको जन्नत में जगह मिले। देखिए अभी मैं नसीम अजीज़ साहब से एक शेर, मैंने कहा कि कैसर शमीम साहब एक शेर तो मुझे दीजिए, कम से कम आखिर में पढ़ूंगा। तो उससे पढ़ने से पहले बस ये कहूँगा कि कैसर खुद जो लफ्ज़ है इसके माने एम्परर का होता है। और जो जर्मन के जो उस टाइम के जो बादशाह हुआ करते थे, हाँ कैसर, तो ये असल में वो जो सिजरा है इसका सीजर से आता है और कैसर से आता है। तो नाम जैसे है वो आज भी हमारे दिलों पर वो राज कर रहे हैं और हमेशा हमारे अदबी ताज उनके सर पर ज़रूर रहेगा। ये कह करके ये शेर पढ़े उनका कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हमारे जिस्मों को मौजें निगल गईं कैसर के सातों का समुंदर बड़े जलाल में था। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हज़ार अकेडमी की से मैं तमाम शुरका तमाम सामने का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उर्दू अकेडमी के कामयाबी से बयान किया। अकेडमी जब चाय पेश की जा रही है तो हम तशरीफ रखते हैं, हमें साथ चाय। बहुत शुक्रिया।